Salim Bayozan Academy. In the last class we studied external structure of the heart. In this class we'll start up with internal structure of the heart or longitudinal section of the heart. Now let's see. Heart is made up of 4 chambers. As you can see, 1, 2, 3, 4. So heart is made up of 4 chambers. Now, out of 4, these 2 are called as atria, and these 2 chambers they are called as ventricles. So there are 2 atria and 2 ventricles. Now, let's talk about first atria. Then we'll see individual atria. Okay? So let's see about atria. These are the 2 atria. These are blood receiving chambers. Blood receiving chambers. क्योंकि ये ब्लड रिसीव कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहां से पल्मोनरी वेन से यहां से ब्लड अंदर आएगा और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा से ब्लड यहां पर आएगा, राइट एट्रिया में. सो दिस वर ब्लड रिसीविंग चेंबर्स. सेकंड, ये थिन वॉल है, इनका जो वॉल है बहुत थिन है. अच्छा, दिस इज द वॉल. ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं. यहां एक नीट लेवल क्वेश्चन है. दिस इज द wall of the atria which is thin. ये जो wall है, wall has low muscular ridges. Low muscular ridges. मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. ये है wall, this one, this part, और इसके ऊपर जो मसल्स हैं उसके रिच बहुत लो है, like this. So low muscular ridges, और इनको बोलते हैं, these are called as muscular pectinati. These are called as what? Muscular pectinati. And let me show you. Like this. These are low muscular ridges which are called as muscular pectinati. अभी जो 2 chambers हैं, these are, यहाँ बीच में एक दीवार है, you can't see it क्योंकि यहाँ aorta and pulmonary artery है. So here there is a wall. The 2 atria are separated by interatrial septum. मैं इसको इजी तरीके से दिखाता हूं आपको. मैं वेरी इजी वे. to rub it. Say for example, ये है हमारा हार्ट. ठीक है, इसमें 4 चेंबर्स हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स. तो ये जो वॉल है इन दोनों के बीच में, दिस इज द वॉल. इसको बोलते हैं इंटर atrial septum. So this is interatrial septum. Clarified? Now, this interatrial septum, ये जो interatrial septum है, इसके ऊपर एक डिप्रेशन है. The interatrial septum has a depression. Let me show you. Now these are the 4 chambers. This is the interatrial septum, ये वाला. And now you have a depression here, like this.
इस तरह से एक डिप्रेशन है, रिमेंबर डिप्रेशन, यू कैन से मार्क, and this depression is called as fossa ovalis. डिप्रेशन का नाम क्या है? fossa ovalis. now अब ये जो डिप्रेशन या fossa ovalis है, ये क्या है? what is this? it is the remnant of fossa foramen. it is the remnant of fossa foramen. अब क्वेश्चन है कि fossa foramen क्या है? This fossa foramen is a hole which connects both atria. तो इन दोनों के बीच में एक होल है, बट ये होल आफ्टर द बर्थ इट क्लोजेस डाउन, बट आफ्टर द बर्थ the hole closes. होल क्लोज हो जाएगा. अगर समझो होल क्लोज नहीं हुआ तो हम उसको बोलते हैं होल इन द आर्ट, है ना, होल इन दी हार्ट. हार्ट में होल है, हमने सुना है ना बच्चों में ज्यादातर. तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो होल बंद हो जाता है. अगर वो नहीं हुआ तो हम बोलते हैं बच्चे के दिल में होल है. If the hole does not closes, call it hole in the heart. क्लियरिफाइड. तो ये दो चेम्बर्स हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं. दोनों को सेपरेट किसने किया है? इंटरएट्रियल सेप्टम. रिमेंबर, सो दिस इज अबाउट एट्रिया. अब हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल एट्रिया को देखेंगे, राइट एंड लेफ्ट. सो ये दो है, ये मेरे हार्ट के राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है. सो दिस इज राइट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट एट्रिया. लेट्स सी इंडिविजुअली इन दोनों. Now let's start with right atrium. Now ये जो right atrium है ये वाला, it receive deoxygenated blood from all over the body through superior and inferior vena cava. So right atrium receives deoxygenated blood from all over the body through superior and inferior vena cava. तो ये यहां से ब्लड लेकर रहेगा और ये यहां से. इफ दिस इज माय हार्ट, सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब दिस इज द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा व्हिच इज नॉट गार्डेड बाय एनी वाल्व. यहां पर कोई भी वाल्व नहीं है. सुपीरियर वेना कावा is not guarded by any valve. यहां किसी भी तरह का वाल्व नहीं है, यहां वाल्व नहीं है. क्यों? कि इसका ओपनिंग ही ऑब्लिक है. बिकॉज इट्स ओपनिंग is
ऑब्लिक, इसका ओपनिंग ही ऑब्लिक है। दूसरा, ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इसके ओपनिंग के पास यहां पर देयर इज अ वाल्व, यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज यूस्टैचियन वाल्व। सो इंफीरियर वेना कावा consists a valve. The opening of the inferior vena cava has a valve, and the valve उसका नाम क्या है? Eustachian valve. तो सिंपल हुआ, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा opens in right atrium. Clarified. Beside these two, ये दोनों वेन्स हैं, these two are veins, superior vein, inferior vein, क्योंकि vein carry deoxygenated blood. Beside these two veins, one more vein opens in the right atrium. Now, beside superior and inferior vein, one more vein opens into right atrium, और एक वेन ओपन होता है ये वाला, that is called as coronary sinus, called coronary vein. अब ये जो coronary vein है, इसका ओपनिंग बहुत ब्रॉड है, has a broad opening, has a broad opening. इसका ओपनिंग बहुत बड़ा है, that is why it is called as coronary sinus, hence called as coronary sinus. ठीक है, सो वेन और साइनस में फर्क नहीं है, ओपनिंग ब्रॉड होने की वजह से प्रॉब्लम है ना। अब ये जो करोनरी साइनस है, अगेन इट इज गार्डेड बाय अ वाल्व, यहां पर एक वाल्व है, तो यहां पर एक वाल्व हुआ यूस्टैचियन, अब यहां पर एक वाल्व है, so that valve is called as Thebasian valve. So coronary sinus consists a valve, और इस वाल्व का नाम है Thebasian valve. तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे वेन्स बताओ जहां पर वाल्व्स हैं, वेन्स, तो वेन कौन हुआ? एक सुपीरियर वेना कावा वेन है, यहां वाल्व नहीं है, इंफीरियर वेना कावा ये वेन है बट यहां पर एक वाल्व है, और करोनरी साइनस भी एक वेन है और यहां पर एक वाल्व है, एंड valves in vein discovered by Fabricus. Valves in vein discovered by Fabricus. So this is what about right atrium. अब हम देखेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में. Now left atrium. Now this is the left atrium, which is smaller to right atrium. Remember, left atrium is smaller to right atrium. Smaller to right atrium. Second, this left atrium receives oxygenated blood. Receive oxygenated blood from lungs through pulmonary veins. Now you can see these are two pair of pulmonary veins which are actually connected to
lungs. तो lungs से oxygenated blood through pulmonary veins left atrium में आएगा. But one thing, one neat level question. This is a vein, correct है? These are veins. लेकिन vein deoxygenated blood supply करते हैं, लेकिन ये veins oxygenated blood supply कर रहे हैं. So this is an exception. So it is an exception where veins supply or transport oxygenated blood. Remember, this question was many times asked in the NEET examination. क्योंकि वेन deoxygenated blood supply करते हैं, oxygenated नहीं. But pulmonary veins, being vein, supply oxygenated blood. Second, in valves में कोई भी, in veins में कोई भी valve नहीं है. So no valves present in pulmonary veins. Reason? इनका opening ही oblique है. So no valves in pulmonary veins. Because their opening itself is oblique. So this is about right atria. So let's see now next two chambers, that is ventricles. Now ventricles, we know ventricles are blood pumping or distributing chambers. Blood distributing chambers. क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करते हैं और ऑल ओवर द बॉडी भेजते हैं. दैट्स व्हाई ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स. एंड एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल, हैव थिकर वैल्व, sorry, thicker wall than atria. So अगर आपको कोई पूछता है एट्रिया ऑरिकल्स का वॉल थिक है या वेंट्रिकल्स का, तो आप बोलोगे वेंट्रिकल्स का. Now this is right and this is left. These two are separated by this wall. Now this wall is called as interventricular septum. Interventricular septum. ठीक है. So the two ventricles separated by interventricular septum. Now the auricles and ventricles, these two are separated by, यहां पर एक wall है, you can't see it, यहां पर एक wall है. The auricles and ventricles are separated by coronary sulcus. Atria and ventricles separated by coronary sulcus. हम इनको डायग्रामेटिकली देखेंगे. ठीक है, मैं एक इजी डायग्राम से आपको समझाता हूं कि ये क्या है. नाउ फॉर एग्जांपल, ये है 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट. से फॉर एग्जांपल, दिस इज द हार्ट, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. अच्छा, इसको हमने क्या नाम दिया था? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. करेक्ट है. इसको हमने नाम दिया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. अब ये जो बीच में वॉल है which separates auricles and ventricles, ये वाला, remember, now this one is called as coronary sulcus. Clarified? Now let's see right ventricle in detail.
ventricle, it receives deoxygenated blood from right atria. So receive deoxygenated blood from right atria. ये ब्लड यहां से यहां आएगा, ठीक है. आफ्टर रिसीविंग क्या करेगा? इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नो सी, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं. यहां से ब्लड यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा. सो एंड पंप्स ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. सो ये पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजेगा? लंग्स को. एंड पंप्स DO2, deoxygenated blood, ठीक है, to lungs through pulmonary artery. Now, one most important thing. हमने क्या पढ़ा? आर्टरी पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट है. बट अब देखो यहां पर, दिस इज एन आर्टरी, ये एक आर्टरी है, बट स्टिल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन. ये फिर अगेन एक एक्सेप्शन है. ऑलरेडी आज क्वेश्चन इन द नीट, तो यहां दो लोग एक्सेप्शन हो गए अभी. ये भी एक एक्सेप्शन है ना, ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये किसको पंप कर रहे हैं? ये वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है. ये आर्टरी है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है. क्लियरिफाइड नाउ. सो दिस इज राइट वेंट्रिकल. तो अब हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल. इन दोनों में दिस इज थिकेस्ट. सेकेंड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया. रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया. ठीक है, तो अब मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं. ब्लड यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से इट गोज इनटू द अओर्टा थ्रू पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन से रिसीव कर रहे हैं. मैंने बोला था ये वेन है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से. सो इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो बीइंग वेन, ये किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड. अगेन इट इज एन एक्सेप्शन. हमने स्टार्ट में बोला था एक्सेप्शन है. अब अंडरस्टैंड, यहां से जब ब्लड आएगा, इट पंप्स द ब्लड इनटू पल्मोनरी, सॉरी दिस इज सिस्टेमिक aorta, pulmonary and pumps oxygenated blood to all over the body through aorta or systemic aorta. So these are the four chambers of the heart in detail. Let's see valves of the heart. Valves of the heart. The valves present between atria and ventricles. Valves present between atria and ventricles. They are called as atrioventricular valve or simply called as AV valves.
क्या बोलेंगे? एवी वैल्व। और ये दो है, आप देख सकते हैं यहां पर एक वैल्व है ये वाला, और यहां पर एक वैल्व है। देयर आर टू टाइप्स, एक का नाम है ट्राइकस्पिड और दूसरे का नाम है बाइकस्पिड। सो एवी वैल्व्स देयर आर टू टाइप्स, ट्राइकस्पिड and bicuspid. Now this bicuspid valve, इसका और एक नाम है mitral valve। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये किसके बीच में है? राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व है। सो दीज आर टू वाल्व्स। नाउ देयर आर टू मोर वाल्व्स। अब दो और तरह के वाल्व्स हैं। There are two more valves. You can see it here. Now this is pulmonary artery and this is right ventricle. इन दोनों के बीच में you can see here there is a valve. So the valve present between pulmonary artery and right ventricle, इसका नाम है पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। तो इसका नाम क्या हुआ? पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। इसको सेमिलुनार, सेमी मतलब क्या? हाफ, लूनार मतलब मून, लूनार एक्लिप्स, आधा चांद। तो वाल्व आधे चांद की तरह है, हाफ मून की तरह है, दैट्स व्हाई सेमिलुनार वाल्व। अब और एक वाल्व है यहां पर, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अवोटा। ये अवोटा है, ये अवोटा है। सो अवोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अवोटा, नाउ दिस वन, इसका नाम है aortic semilunar valve. So valve present between left ventricle and aorta, इसको हम क्या बोलेंगे? aortic semilunar valve. सो ये चार वाल्व है हार्ट के अंदर। अब टोटल कितने वाल्व्स हो गए देखो। इंफीरियर वेना कावा के पास एक वाल्व है, दैट इज यूस्टैचियन वाल्व। कोरोनरी साइनस के पास एक वाल्व है, दैट इज थिबासियन वाल्व। ये वाल्व है ट्राइकस्पिड, व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। दिस वाल्व इज बाइकस्पिड, present between left atria and left ventricle. Now this is known as pulmonary semilunar valve and this one is known as aortic semilunar valve. So totally there are 6 valves present in the heart. Now chorda tendinae, I am talking about these chorda tendinae. Now chorda tendinae are white fibers. ये white fibers है और इसे tendons हैं, tendons, and these white fibers are attached to these muscles and these muscles are called as papillary muscles. Attached to papillary muscles. Remember, so these are white fibers which are attached to these papillary muscles, and this chorda tendinae is only found in ventricles. Chorda tendinae only found in ventricles.
अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पैपिलरी मसल्स हैं, these are attached to the wall of the ventricle. So papillary muscles attached to wall of ventricle. Wall of ventricle. अच्छा, ये है wall of ventricle. This wall, it shows high ridges like this. These are the high ridges. याद है, यहां पर लो रिजेस हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स के वॉल में हाई रिजेस हैं. सो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल शो हाई रिजेस, और इन हाई रिजेस को हम बोलते हैं कॉलमने कार्निया. इसको हमने क्या बोला था? मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी, लो रिजेस. ये है हाई रिजेस, कॉलमने कॉर्निया. एंड टू दिस हाई रिजेस ये पैपिलरी मसल्स अटैच्ड हैं. बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्डा टेंडिनी का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्डा टेंडिनी? नाउ ये जो कॉर्डा टेंडिनी है, व्हाइट फाइबर्स, टेंडॉन्स हैं, ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स के मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं. सो कॉर्डा टेंडिनी holds tri and bicuspid valve during ventricular contraction. आप बोल सकते हो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को सपोर्ट करते हैं या फिर उसको पकड़ कर रखते हैं, कॉर्डा टेंडिने. सो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कॉर्डा टेंडिने, उनका फंक्शन क्या है? रिमेंबर, हाई रिजेस का नाम क्या है? सो दिस आर ऑल क्वेश्चंस दे विल आस्क यू इन नीट एग्जामिनेशन. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, नीट लेवल या एम्स लेवल, तो आप प्लीज कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा.